How are you children? I hope you are fit and fine at your places. So children, we will start today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is promise. What is the meaning of this word? हिंदी में हम इसे वादा या प्रतिज्ञा भी बोलते हैं. In English, it is a written or spoken statement that you will certainly do or not do something. ये एक लिखी हुई या बोली हुई स्टेटमेंट हो सकती है कि आप कुछ चीज को करेंगे या नहीं करेंगे. So it can be both ways. For example, when I say Rohan promised never to tease the animals again. रोहन ने प्रॉमिस किया कि वो एनिमल्स को कभी तंग नहीं करेगा. सो ये प्रॉमिस किस चीज के लिए था? किसी काम को ना करने के बारे में. And when I say I promise to obey my elders or I promise to respect my elders, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करूंगी और उनकी बात मानूंगी. सो ये प्रॉमिस किस लिए है चिल्ड्रन? किसी चीज को करने के बारे में. So it can be both ways. Now what we are going to do today in our EVS class, children, we will start the notebook work and complete it also. In our EVS class today, we will do keywords and question answers of chapter number 7. We all need water. As we have already done discussion and its book work, so today we will do notebook work. And at 12:15 noon, दोपहर को 12:15 पर I will take test of EVS जो कि शेड्यूल था 11th को होना है. So I will send you a worksheet. You can complete the worksheet or you can write the test in your 3-in-1 copy or EVS copy and send the pics to me. So it is scheduled at 12:15 noon. Now we will start with our notebook work. So children, today we are doing notebook work of chapter number 7. We all need water. So as you know, then whenever we start the notebook work in our EVS notebook, what do we do children? We have left page blank. वो blank page है. In that page you have to draw or paste something that is related to the chapter. So we have our chapter number 7. We all need water. So you can paste or draw anything that is related to uses of water, water sources or saving water or methods to purify water. इनसे related कुछ भी आप या तो draw कर सकते हैं या paste कर सकते हैं. So in that page on the right side page जो भी है उस पर आपको details लिखनी है like class work, today's date. In the first line you will write chapter number 7. In the second line you will write the name of the chapter, that is we all need water. In the third line you will write keywords, and from the fourth line we will start our keywords. We will start writing our keywords. So at number 1, utensils. Utensils क्या होते हैं? बर्तन. UTENSILS. Utensils. आप इसे इस तरह से भी रीड कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं. UTENSILS. 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 At number 2, mountains. MOUN MOUNTAINS tains. Mountains. Mountains क्या होते हैं? पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं. So mountains जो very high hill होती हैं children, they are called mountains. At number 3, MELT melt. Melt मतलब पिघलना. आप आइसक्रीम खाते हैं, इट मेल्ट्स, वो मेल्ट हो जाती है. या कुछ ऐसी चीज़ें जो सॉफ्ट होती हैं, हम बोलते हैं कि मुंह में माउथ में लेते ही वो मेल्ट हो गई है. ये भी होता है. और एज वी हैव लर्न इन अवर चैप्टर दैट देयर इज स्नो ऑन द पीक्स ऑफ माउंटेन. माउंटेन की पीक्स पर जो स्नो होती है वो समर सीजन में मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होकर वो वाटर के फॉर्म में चेंज होकर माउंटेन से नीचे आती है. So that is MELT melt, पिघलना. At number 4, STREAM stream. Stream क्या होता है? ये नदी होती है, छोटी नदी. ये तब फॉर्म होती है जब स्नो मेल्ट होती है. हमने जैसे रीड किया है, डिस्कस किया है चैप्टर में, जब स्नो मेल्ट होती है या तो वो स्ट्रीम की या वो रिवर की फॉर्म में माउंटेन से नीचे प्लेन एरिया में आती है. So that is stream. STREAM. स्ट्रीम भी वाटर का सोर्स है. At number 5, UNDER under.
G-R-O-U-N-D, ground, underground. You have to spell or read or learn it like this. U-N-D-E-R, under, G-R-O-U-N-D, ground, underground. Underground क्या होता है? जो ground के अंदर होता है. So we draw underground water when we dig wells, tube wells. तो हम जब ट्यूब वेल्स और वेल्स को डिग करते हैं तो हम अंडरग्राउंड वाटर ले सकते हैं. सो एट नंबर 6, BOIL, बॉयल, ING, बॉइलिंग. ये प्रोसेस है बॉइलिंग का. हम वाटर को बॉयल करते हैं ताकि उसमें जो जर्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए और वो फिट हो जाए ड्रिंकिंग के लिए और दूसरे यूजेस के लिए. सो बॉइलिंग इज द मेथड. BOILING, बॉइलिंग, उबालना जिसे कहते हैं हम. कुछ फूड को भी हम बॉईल करके खाते हैं. सो एट नंबर 7, ELECT, इलेक्ट, RIECAL, कल, इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिकल क्या है? बिजली से संबंधित, बिजली का. सो बिजली क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है. सो ये इलेक्ट्रिकल है. दिस वर्ड इज इलेक्ट्रिकल, बिजली से संबंधित, बिजली का. एट नंबर 8, वाटर, प्योरीफायर, WATER, वाटर, पानी, PURE, प्योरी, FIER, फायर, प्योरीफायर, पानी को साफ करने वाला. सो वो वाटर प्योरीफायर इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, वो एक कंटेनर भी हो सकता है, डबल होता है कंटेनर. हम ऊपर वाले कंटेनर में पानी डालते हैं और वो प्योरीफाई होकर, वहाँ कैंडल्स होती हैं और वो प्योरीफाई होकर नीचे वाले कंटेनर में आ जाता है और हम उससे पानी ले सकते हैं. सो ये अटैच होते हैं दोनों कंटेनर. सो इस तरह से उसका जो बनावट होती है कंटेनर की कि वो पानी साफ हो जाता है. एंड वी हैव इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर ऑल्सो. हमारे घर में इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर भी होता है. सो दिस इज वाटर प्योरीफायर. So children, after we have done the keywords, we will now do the question answers of chapter number 7. We all need water. Now take out the next page. आप next page निकालेंगे and on the right side you will write details again like classwork, today's date. In the first line you will write chapter number 7. In the second line you will write we all need water, and in the third line you will write question answer. This is the short form of question answers. So from the fourth line you will start writing the question number 1. Question number 1 is list any 4 uses of water. पानी के कोई 4 uses बताएं. uses क्या होते हैं चिल्ड्रन? कि जिनके लिए हम पानी को उपयोग करते हैं, यूज करते हैं. पानी किन किन चीजों में काम आता है. So we have many uses of water but we have to mention 4 only. बहुत सारे uses हैं पानी के. सो बट हमें 4 यूजेस मेंशन करने हैं. आंसर, वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड बेदिंग. पानी यूज होता है ड्रिंकिंग में, पीने में, कुकिंग मीन्स खाना पकाने में, वॉशिंग मीन्स धोने में. वो हम यूटेंसिल्स भी वॉश कर सकते हैं या क्लोथ्स वॉश कर सकते हैं, और बेथिंग मतलब नहाने में. So water is used for drinking, cooking, washing and bathing. So question number 1 क्या था children? List any 4 uses of water. 4 uses of water को list करिए. Answer is water is used for drinking, cooking, washing and bathing. So this was question number 1. After we write the answer of question 1, we will leave a line. And then we will start question number 2. Name any 2 ways of cleaning water at home. घर पर ही पानी को साफ करने के 2 तरीके बताएं. पानी, चिल्ड्रन आई वांट टू टेल यू कि वाटर को लार्ज स्केल पर भी प्योरीफाई किया जाता है. जहाँ से हमें पानी मिलता है, आता है. सपोज हम लोग सोचते हैं कि हमें पानी टैप से आता है, तो टैप से ही आता है, बट वो टैप में कहाँ से आता है? देयर आर लार्ज रिजर्वियर्स. वो रिजर्वियर्स हैं, वो डैम से भी हो सकता है, वो किसी कैनल से भी हो सकता है, वो रिवर से भी हो सकता है.
वो कहीं स्टोर किया जाता है, वहाँ उसे प्योरीफाई किया जाता है लार्ज स्केल पर, बहुत सारा वाटर होता है, उसे उसी स्केल पर प्योरीफाई किया जाता है। प्लांट्स लगे होते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के। बट यहाँ हमें क्या करना है, हमें उसे घर पर भी साफ करना है पानी को। सो व्हाट आर द मेथड्स और व्हाट आर द वेज? नेम एनी 2 वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। घर पर ही साफ करने के 2 तरीके बताएंगे। फर्स्ट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग कर कर मतलब पानी को उबाल के, किसी भी कंटेनर में हम पानी को उबालेंगे, एक सर्टेन टेम्परेचर तक उबालेंगे, उसके बाद उसे ठंडा होने देंगे, देन हम उसे यूज कर सकते हैं। वो बॉइलिंग का प्रोसेस है जिससे पानी साफ हो जाता है। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो जर्म्स को किल कर देता है जो वाटर में होते हैं, बैक्टीरिया या जर्म्स। नंबर 2, बाय यूजिंग वाटर फिल्टर। एक और तरीका है जो हमारे घरों में ही लगा होता है डिवाइस, वो इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर भी हो सकता है, वो एक कंटेनर भी हो सकता है जो डबल कंटेनर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई नीड नहीं होती, वो वाटर को प्योरीफाई करने में काम आता है। हम ऊपर वाले कंटेनर पे पानी डालते हैं और वो प्योरीफाई होकर नीचे वाले कंटेनर में अपने आप आ जाता है और तब हम साफ पानी ले सकते हैं। सेम एज you have ROs, we have many kinds of brands of water purifier at our home। हमारे घर में बहुत ब्रांड्स के, बहुत तरह के वाटर प्योरीफायर होते हैं। RO भी होता है, UV रेज वाला होता है। सो वो वाटर फिल्टर से ही हम पानी को साफ करते हैं घर में। सो आफ्टर राइटिंग by boiling, by using water filter, that this is the answer of question number 2. We will again leave a line, then we will start writing question number 3. Why should we drink clean water? हमें साफ पानी ही क्यों पीना चाहिए? So ऐसा क्या रीजन है चिल्ड्रन? Can we drink rain water? हम रेन वाटर ड्रिंक कर सकते हैं? No. Can we drink the water from the river? मतलब सीधे ही पानी से ही हम रिवर से ही पानी पी सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं, वो प्योरीफाई नहीं होता है और हम ऐसे पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। सो व्हाई शुड वी ड्रिंक क्लीन वाटर? हमें साफ पानी क्यों पीना चाहिए? द आंसर इज वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर टू अवॉइड फॉलिंग सिक। हमें साफ पानी पीना चाहिए ताकि अपने आप को अवॉइड कर सकें, बचा सकें। किससे बचाना है? बीमार होने से। सिक मीन्स बीमार होने से, फॉलिंग सिक मतलब बीमार हो जाना। उस स्टेज से अपने आप को बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए वो स्टेज, हमें साफ पानी पीना चाहिए। सो हमें साफ पानी पीना चाहिए। इसलिए वी हैव ROs, वी हैव वाटर प्योरीफायर्स एट होम। तो हमारे घर में इसीलिए हम जो कुकिंग में जो वाटर यूज करते हैं या ड्रिंकिंग में यूज करते हैं, तो वो पानी हम उस RO से निकाल कर या उस वाटर प्योरीफायर से लेकर तब हम उसे यूज करते हैं। कुकिंग में भी when we are washing vegetables and fruits, then we use that water also। जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल वॉश कर रहे हैं तभी भी हम उस पानी को यूज करते हैं। सो टैप वाटर इज नॉट एट स्ट्रेट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सीधा टैप वाटर फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए या कुकिंग के लिए। सो वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर टू अवॉइड फॉलिंग सिक। हमें बीमार होने से बचाने के लिए साफ पानी पीना चाहिए। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 7। So we have completed its notebook work also. So children, as you know that we have completed the book work and notebook work of chapter number 7. So that was about our EVS class. We will meet in our next EVS class. Till then, bye bye students.